Assalamu alaikum dear students, I hope you will be fine. आज के लेक्चर में हम जो है वो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैसे डिटरमिन किए जाते हैं इस बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एनी पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी can be represented with the help of harmonically related complex exponential signals. So these harmonically related complex exponential signals, each one of them has some coefficient जिनको ए केस से हमने रिप्रेजेंट किया था। वो कोफिशेंट किस तरह से मालूम किए जाते हैं आज जो है वो हम इस हवाले से बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है जो हमारा वो इस फोरियर सीरीज कोफिशेंट्स की डिटर्मिनेशन के बारे में है कि हाउ वी कैन डिटरमिन द फोरियर सीरीज कोफिशेंट्स एंड वी विल टेक a few very simple examples in today's lecture जिसमें हम given signal के जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं वो मालूम करेंगे। Let's start today's lecture. Okay, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एनी पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी कैन बी रिप्रेजेंटेड by with the help of these complex exponentials. This e raised to power j k omega naught t are the complex exponential signals which are used to represent this periodic signal x of t. अब अगर आप इसमें k की different values put करें, for example k को 1 put करें तो you will get e raised to power j omega naught t, which is called a complex exponential signal with fundamental frequency omega naught, and this is also called the fundamental component. इसी तरह से अगर आप k को 2 पुट करें तो you will get e raised to power j 2 omega naught t, whose frequency will be 2 times the fundamental frequency omega naught. So that's why it is called second harmonic component. इसी तरह से अगर आप k को 3 पुट करें तो you will get e raised to power j 3 omega naught t, और उस केस में this is called third harmonic component and so on so forth. ये आपके पास तमाम जो complex exponential signals हैं इनकी एक ख़ास बात ये है कि इन सब में आपके पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो किसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट का इंटीजर मल्टीपल है। So either you have 2 omega naught, 3 omega naught, 4 omega naught and so on so forth. Moreover, इन तमाम k की वैल्यूज़ के लिए here you have some coefficients a case. मसलन k को अगर आप 1 पुट करते हैं तो you have to have here a1. इसी तरह से k2 के लिए you have a2, similarly a3, a4 and so on so forth. ये ए केस कोफिशेंट हैं जो आपने मालूम करने हैं, और इनफैक्ट जो फोरियर सीरीज़ है उसमें जो टास्क है वो टास्क सिर्फ और सिर्फ ये कोफिशेंट्स डिटरमिन करने का ही है, बिकॉज रेस्ट एवरीथिंग इज़ नोन. यू नो द ओमेगा नॉट बिकॉज यू नो कि जिस पीरियोडिक सिग्नल को आप जो है वो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं दैट हैज़ सम टाइम पीरियड कैपिटल टी. सो रेसिप्रोकल ऑफ दैट 2 पाई ओवर टी इज़ ओमेगा नॉट एंड रेस्ट एवरीथिंग is known. So the only task which we have to do in case of Fourier series is to find these coefficients a case. ये जो है वो हमें मालूम करने हैं. ये किस तरह से मालूम करते हैं आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे. इस इक्वेशन को अगर लेट्स सपोज हम e रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे, तो इस साइड पे वी विल गेट एक्स टी e रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, एंड ऑन दिस साइड वी विल गेट ए के e रेज़ टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी e रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, and then we integrate this over one time period from 0 to some say capital T, which is equals to 2 pi over omega naught. We integrate this thing, so on this side we will get an integral from 0 to capital T x t e raised to power minus j n omega naught t, and on this side we will get the integral of this summation a k e raised to power j k omega naught t e raised to power minus j n omega naught t. अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई मुश्किल हो. जस्ट वी हैव टू
we have multiplied our signal xt with e raised to power minus j n omega naught t, and then we have integrated over one complete period from 0 to some capital T. आप किसी भी पीरियड पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू भी कर सकते हैं, या फ्रॉम टी टू 2t भी कर सकते हैं, बट यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट दिस सिग्नल ओवर वन कंप्लीट पीरियड. वो कंप्लीट पीरियड कुछ भी हो सकता है. Okay, so xt e raised to power minus j n omega naught t dt is basically equals to this ak e raised to power j k minus n omega naught t, क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स थी ऑन द राइट हैंड साइड, एक e raised to power j k omega naught t था, एक e raised to power माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी था. सो हम इसको e raised to power j k minus n omega naught t जो है वो लिख सकते हैं. एंड वी कैन आल्सो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड समेशन. सो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. बट नाउ व्हाट इज दिस e raised to power j k n minus omega naught t? इफ वी यूज द Euler relationship, e raised to power j theta according to Euler relationship is cosine theta plus j sin theta. So here we have e raised to power j k minus n omega naught t. So we can write it cosine k minus n omega naught t plus j sin k minus n omega naught t. Now we have two important cases. The first case is when k is not equals to n. So k for example 4 है, n जो है वो 2 है, या k जो है वो 6 है, n जो है वो 3 है. Any value for k and n which are not equal. जब ये k और n equal नहीं होंगे तो आपके पास you have this integral, ये cosine k minus n omega naught t है और plus j sin k minus n omega naught t है. When k is not equals to n, तो कोसाइन को आपने एक कंप्लीट टाइम पीरियड के ऊपर इंटीग्रेट करना है और साइन को भी आपने एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर इंटीग्रेट करना है. यू रिमेंबर अबाउट कोसाइन एंड साइन फंक्शंस. बोथ साइन एंड कोसाइन रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर से 2 पाई. एक पीरियड इनका जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है. सो इस पीरियड के अंदर आपके पास कोसाइन हो या साइन हो तो दे हैव एज मैनी पॉजिटिव एरिया एज नेगेटिव इन वन कंप्लीट पीरियड. सो हाफ साइकिल के लिए कोसाइन जो है दैट इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग हाफ साइकिल के लिए कोसाइन जो है दैट इज नेगेटिव. एंड सेम इज आल्सो ट्रू फॉर साइन फंक्शन. सो अगर आप एक पीरियड के ऊपर कोसाइन को इंटीग्रेट करेंगे या साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो यू हैव एज मच पॉजिटिव एरिया as negative. So net result will be equals to 0. So whenever k is not equals to n, तो आपके पास कोसाइन और साइन जो हैं वो उनका एक कंप्लीट साइकिल आपके पास है और उस साइकिल के ऊपर आप उस एक पीरियड में उस कंप्लीट साइकिल में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं. चूँकि उसमें हाफ साइकिल पॉजिटिव है और हाफ साइकिल नेगेटिव है तो इस वजह से वो हमेशा आपके पास जो नेट एरिया आएगा वो 0 आएगा. सो इस इंटीग्रल का रिजल्ट जो होगा वो हमेशा 0 होगा व्हेन एवर k इज नॉट इक्वल्स टू n. हाउएवर व्हेन k इज इक्वल्स टू n, जब k n की इक्वल हो जाएगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू k माइनस n विल बिकम 0. सो दिस विल बिकम e raised to power 0 and e raised to power 0 is 1. सो यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट dt और इसको इंटीग्रेट आप नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जब हम करते हैं तो वी गेट कैपिटल T एज द आंसर. ठीक है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको याद रखना है कि व्हेन एवर k इज नॉट इक्वल्स टू n, सो यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर वन कंप्लीट साइकिल और एक कंप्लीट साइकिल में जितना पॉजिटिव एरिया है इतना ही नेगेटिव एरिया है. सो इस वजह से आपके पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 आएगा. बट व्हेन k इज इक्वल्स टू n तो उस केस में दिस विल बिकम e raised to power 0 एंड यू हैव जस्ट हैव टू इंटीग्रेट 1 बेसिकली, क्योंकि ये e raised to power 0 1 हो जाएगा तो इसको आपने इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स पुट करनी है व्हेन k इज इक्वल्स टू n. सो लेट्स सी ये e raised to power j k minus n omega naught t dt जिसको हमने इंटीग्रेट करना है. when k is equals to n this will become equals to 0 और जब ये 0 हो जाएगा तो you just have to integrate this dt
और इस डी टी को जो है जब आप इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे तो यू विल गेट कैपिटल टी एज द आंसर. सो दिस इंटीग्रल e raised to power j k minus n omega naught t dt, if we summarize, this is equals to capital T when k is equals to n, and it is equals to 0 when k is not equals to n. So आपको याद है जो पिछली स्लाइड में कि हमारे पास ये तो हम जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स टी ई रेज टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी था, जिसको हम एक इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं. एंड फ्रॉम हेयर वी गेट व्हेन के इज इक्वल्स टू एन, सो हेयर द कोफिशिएंट जो हम मालूम कर रहे हैं दैट वुड बी इक्वल्स टू ए ऑफ एन. क्योंकि के को हमने एन पुट किया है तो ओनली देन जो है हमारे पास इसका आंसर जो है वो टी आया है. सो ए ऑफ एन इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 over t and integral of x t e raised to power minus j n omega naught t dt. So this is the formula to determine the Fourier series coefficients. और यहाँ पे चंद एक चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. कि आपने कोई भी कोफिशिएंट जो है अगर मालूम करना है, फॉर एग्जांपल आपने a1 मालूम करना है, सो a1 कैसे मालूम किया जा सकता है? यू विल पुट n इज इक्वल्स टू 1, सो हेयर यू विल गेट x t e रेज टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t, क्योंकि n को आपने 1 पुट किया है. सो जो आपका सिग्नल है, जो पीरियाडिक सिग्नल है जिसकी फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंटेशन आप चाह रहे हैं, उस सिग्नल को आप इस कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे e रेज टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t से, और इंटीग्रेट करेंगे एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर, और उस पीरियड से फिर आप जो कैपिटल टी है उससे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट a1. सिमिलरली a2 फाइंड करना है तो n को 2 पुट करेंगे, सो एक्स टी ई रेज टू पावर माइनस जे 2 ओमेगा नॉट टी, इसको आप इंटीग्रेट करें ओवर 1 कंप्लीट पीरियड, सो यू विल फाइंड a2. सिमिलरली a माइनस 1 a माइनस 2 भी अकॉर्डिंगली फाइंड किए जा सकते हैं बाय पुटिंग n इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड n इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन दिस इक्वेशन. ओके जी. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो हमारे पास जो हमें रिजल्ट मिला है ए एन फाइंड करने का, इसको आप किसी भी एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर अगर इंटीग्रेट करें तो यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट. सो इट डज नॉट मैटर वेदर यू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to t और t to 2t और 3t to 4t, किसी भी एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट फ्रॉम 0 to कैपिटल T, वी नॉर्मली राइट इट लाइक दिस, कि आप एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर, दिस कैपिटल T शोज कि आप एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. वो पीरियड कुछ भी हो सकता है, 0 से t भी हो सकता है, माइनस t/2 से प्लस t/2 भी हो सकता है, या कैपिटल T से 2t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन जब भी आप एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास this will be equals to capital T when k is equals to n, and it will be 0 when k is not equals to n. और इसी तरह से a n जो आपने फाइंड किए that would be 1 upon t integration over 1 complete period x t e raised to power minus j n omega naught t. So if your signal x t, which is a periodic signal, if it has a Fourier series representation, now we will discuss in some future lecture कि कौन सा ऐसा सिग्नल है जो इसकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है या पॉसिबल है, और कौन सा ऐसा सिग्नल है जिसकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है जो पॉसिबल नहीं है. बट देयर कुड बी सम सिग्नल्स विच मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ Fourier series, so it means that they may not have a Fourier series representation. But if your xt, if your signal has a Fourier series representation, then it can be represented by a set of harmonically related complex exponential signals, and the Fourier series coefficients are given by this equation a of n. जो है ये हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के लिए जो इक्वेशन फाइंड की है, इससे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो है वो मालूम किए जा सकते हैं. सो ये दो इक्वेशंस जो हैं ये किसी भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की जो है वो फोरियर सीरीज को डिफाइन करती
सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको डिस्कस करेंगे। ये दो इक्वेशन, ये एक्स टी ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच मीन्स कि एक्स टी सिग्नल विच इज पीरियाडिक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स विद कोफिशिएंट ए केज। और ए केज जो हैं वो किस तरह मालूम किए जा सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप उस सिग्नल को एक्स टी को ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करेंगे और एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट ए केज। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें हमने एक्स टी को लिखा है इक्विवेलेंट टू can be represented by a set of harmonically related complex exponential, तो that equation is called synthesis equation। ये वाली जो इक्वेशन है ये synthesis equation कहलाती है। और इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है that is called analysis equation। और ये जो कोफिशिएंट्स हम मालूम करते हैं ए केस, these are called spectral coefficients or Fourier series coefficients। So all these a k's are called spectral coefficients or Fourier series coefficient। अगर हमने इसमें ए ऑफ ज़ीरो मालूम करना है तो हम इसमें ए ऑफ ज़ीरो एक स्पेशल कोफिशिएंट है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हमने ए ऑफ ज़ीरो मालूम करना है तो हेयर वी विल पुट के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। व्हेन वी पुट के इज इक्वल्स टू ज़ीरो व्हाट वी विल गेट एक्स टी ई रेज टू पावर, चूँकि के ज़ीरो है तो ई रेज टू पावर ज़ीरो विच इज़ 1। सो इट मीन्स यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट द ओरिजिनल सिग्नल एक्स टी जिसकी आप फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, सिर्फ उस सिग्नल को आपने इंटीग्रेट करना है ओवर वन कंप्लीट पीरियड एंड दैट विल गिव यू द कोफिशिएंट ए नॉट। ठीक है, सो ये जो कोफिशिएंट ए नॉट है दिस इज अ स्पेशल कोफिशिएंट एंड इट इज कॉल्ड डीसी कोफिशिएंट। डीसी कोफिशिएंट का मतलब ये है कि ये आपको सिग्नल की एवरेज वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ओवर वन पीरियड। सो सिग्नल की एवरेज वैल्यू जो है वो क्या है ये आपको ए नॉट जो कोफिशिएंट है डीसी कोफिशिएंट ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। मसलन इसकी अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स सपोज हमारे पास एक सिग्नल है, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, एक सिग्नल है जो कि एक कंप्लीट साइकिल में जितना उसका एरिया नेगेटिव है इतना ही एरिया जो है वो उसका पॉजिटिव है। ठीक है, सो हाफ साइकिल के लिए लेट्स सपोज ये नेगेटिव है और हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव है। सो ये सिग्नल अगर आप इसका एक साइकिल के अंदर एरिया मालूम करेंगे तो इसका एरिया क्या आएगा, सो इसका एरिया जो आपके पास आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये अगर इसका लेट्स सपोज एक कंप्लीट साइकिल है तो चूंकि ये हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव है और हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव है तो इसका इस सिग्नल के लिए जो ए नॉट आएगा या जो डीसी कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ए नॉट की डेफिनेशन ही ये है कि आपने सिग्नल को एक साइकिल के ऊपर इंटीग्रेट करना है और इसमें एक साइकिल के ऊपर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो दिस सिग्नल हैज़ एज मैनी नेगेटिव एरिया एज पॉजिटिव, सो द रिजल्ट वुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और देखते हैं कि जिसमें सिग्नल जो है वो उसका लेट्स सपोज एक साइकिल के अंदर नेगेटिव एरिया जो है वो कम है और पॉजिटिव एरिया जो है वो ज़्यादा है, यानी हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव तो रहता है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम है और जिस हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव रहता है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अब अगर आप इस सिग्नल के लिए जो है वो एरिया मालूम करेंगे, ए नॉट मालूम करेंगे, डीसी कोफिशिएंट मालूम करेंगे तो इसका डीसी कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि ऑल्दो ये हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव है और हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव है, लेकिन हाफ साइकिल जिसके लिए ये पॉजिटिव है उसमें इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट केस जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव वाले साइड के लिए। मसलन यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ये वैल्यू -1 है एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम तो ये +2 हो सकती है। सो चूँकि ये नेट एरिया इसमें जो आपके पास आएगा वो उसमें पॉजिटिव ज़्यादा है और नेगेटिव कम है, इस वजह से आपके पास ए नॉट जो आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव। इसी तरह से एक तीसरा केस ये बन सकता है कि एक ऐसा सिग्नल है जिसका जो नेगेटिव एरिया है वो ज़्यादा है और पॉजिटिव एरिया जो है वो कम है।
मसलन इसी तरह से हाफ साइकिल के लिए वो नेगेटिव है, लेकिन अब इसका नेगेटिव एरिया ज़्यादा है और जो इसका पॉजिटिव एरिया है हाफ साइकिल के लिए वो कम है। तो अब इसका जब आप ए नाट मालूम करेंगे तो ए नाट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट कि ए नाट जो डीसी कोफिशिएंट है दैट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल इन वन कंप्लीट पीरियड। वो एवरेज वैल्यू 0 भी हो सकती है, वो एवरेज वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, वो एवरेज वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। 0 कब होगी? जब as many negative area you have as there is positive area। इसी तरह से पॉजिटिव कब होगी ए नाट की वैल्यू? जब पॉजिटिव एरिया ज़्यादा हो और नेगेटिव एरिया कम हो। और इसी तरह से नेगेटिव कब होगी ए नाट की वैल्यू? जब नेगेटिव एरिया ज़्यादा हो और पॉजिटिव एरिया कम हो। प्लीज़ रिमेंबर वन मोर पॉइंट कि ए नाट मालूम करने के लिए हम इस सिग्नल को किसी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर हम a1 मालूम करें तो k को 1 पुट करेंगे, सो दिस विल बी x ऑफ t e रेज टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सिग्नल है x ऑफ t, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल से e रेज टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t से, और फिर इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह से अगर k को हम 2 पुट करते हैं, a2 फाइंड करना चाहते हैं, तो वी विल मल्टीप्लाई अवर सिग्नल x ऑफ t विद e रेज टू पावर माइनस j2 ओमेगा नॉट t। ठीक है, तो ए नाट के अलावा बाकी तमाम कोफिशिएंट मालूम करने के लिए हम अपने गिवन सिग्नल xt को किसी न किसी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और फिर उसको एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं। बट टू फाइंड ए नाट विच इज़ डीसी कोफिशिएंट, वी ओनली हैव टू इंटीग्रेट अवर गिवन सिग्नल xt, जिसकी हमें फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सिर्फ उस सिग्नल को एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं और वहाँ से हमारे पास उसका डीसी कोफिशिएंट जो है या ए नाट जो है वो वैल्यू मालूम होती है। सो जैसा कि मैंने कहा पहले भी कि ये ए नाट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये ए नाट नेगेटिव भी हो सकता है और ये ए नाट जो है वो 0 भी हो सकता है। Okay, so now let's take a few very simple examples जिसमें हम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मालूम करेंगे। ये जो आज हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ये इतनी सिंपल एग्जांपल हैं कि इनके लिए हमें ये इंटीग्रल फॉर्म यूज़ नहीं करनी पड़ेगी ए केस मालूम करने के लिए जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। जनरली स्पीकिंग हम अपने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट उसी इंटीग्रल फॉर्म से मालूम करते हैं। अगर आप चाहें तो इस केस में भी इस इंटीग्रल फॉर्म से मालूम किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये केस इतना सिंपलर है कि इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह की इंटीग्रल फॉर्म से कोफिशिएंट्स जो हैं वो मालूम करें। सो इसमें हम जस्ट बाय इंस्पेक्शन ही इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे, बट दैट कुड ओनली बी डन फॉर अ फ्यू वेरी सिंपल केसेस। जब आपके पास जो है वो केसेस कम्प्लेक्स होते हैं तो उस केस में, जब आपके पास सिग्नल कम्प्लेक्स होंगे तो उस केस में आप इस तरह की अप्रोच यूज़ नहीं कर सकेंगे। फिर आपको ए केस जो है वो उसी इंटीग्रल फॉर्म से मालूम करने पड़ेंगे जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। बट द फर्स्ट कपल ऑफ एग्जांपल्स आर वेरी सिंपल। सो आज के लेक्चर में हम जो है वो डायरेक्टली इनको ही यूज़ करते हुए फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स जो हैं वो मालूम करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, बेसिकली ये आज का ये वाला लेक्चर जो आपके इस सीरीज़ का आई थिंक लेक्चर 18 है और जो नेक्स्ट लेक्चर 19 है, ये दोनों आपस में काफ़ी रिलेटेड हैं। इसको डिवाइड इस वजह से किया गया है 2 लेक्चर्स में, वरना एक भी हो सकता था, लेकिन डिवाइड इस वजह से किया गया है कि वो टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से कि टाइम जो है वो ज़ाहिर है एक लेक्चर का ज़्यादा हो जाता है, वरना ये दोनों लेक्चर्स जो हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। सो उस लेक्चर में भी जो लेक्चर 19 है लेक्चर 19 में भी हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स इसी तरह से फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स की करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से उसमें जो जिन फॉर्म्स में वो हमने फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट किया है उन फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो है वो बाज़ यहाँ पे भी यूज़ हो रही हैं। सो बेहतर यही होगा कि आप इन दोनों लेक्चर को जो है वो कंबाइन ही समझें, क्योंकि ये एक ही चीज़ है। उस लेक्चर के बाद कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहे हैं, इस लेक्चर के बाद कंसेप्ट उसमें यूज़ हो रहे हैं। सो लेट्स कम बैक टू दिस एग्जांपल। वी हैव सिग्नल xt इज साइन ओमेगा नॉट t
इस साइन ओमेगा नॉट टी के लिए हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मालूम करने हैं। दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल, साइन सिग्नल है, साइन जो है वो आपको पता है पीरियोडिक सिग्नल होता है, तो इसके लिए हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मालूम करने हैं। अब इस तरह के सिंपल केस को हम जस्ट यूजिंग आयलर रिलेशन इस तरह लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द आयलर रिलेशन, any sin theta can be written as half j e raised to power j theta minus half j minus 1 over half j e raised to power minus j theta। सो हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं 1/2j e raised to power j omega naught t minus 1/2j e raised to power minus j omega naught t। और इसको अगर हम ये इस फॉर्म से कंपेयर करें, ये एक्चुअली अब इस वजह से मैं कह रहा था कि ये दोनों लेक्चर इंटर रिलेटेड है कि ये वाली जो फॉर्म है एक्स टी की, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस की है कि आपके पास एक्स टी जो है वो इस तरह की फॉर्म में भी हो सकता है। ये अल्टरनेट फॉर्म है एक फोरियर सीरीज़ की, ठीक है। सो इस तरह की फॉर्म में भी आपके पास हो सकता है, बट इट्स वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट एट द मोमेंट जस्ट अज्यूम कि हम इस तरह की फॉर्म में एक्स टी को लिख सकते हैं, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि क्यों लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें आपके पास एक कोफिशिएंट होता है ए नॉट, ठीक है। ए नॉट वो कोफिशिएंट होता है जो ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी की किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता। मसलन अगर यहाँ पे होता 1 + 1/2j एंड दिस थिंग, तो फिर हम कहते हैं कि ए नॉट इज इक्वल्स टू 1, जिसके साथ कोई ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी की टर्म नहीं आ रही होती, दैट इज अवर ए नॉट। क्योंकि यहाँ पे वो ऐसी कोई टर्म मौजूद नहीं है जिसके साथ ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी या ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि अवर ए नॉट विल बी इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन में k को 1 पुट करें तो यू विल गेट a1 ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी, ठीक है। सो ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है दैट इज योर a1। सो हेयर वी हैव, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2j, सो अवर a1 इज 1/2j। एंड सिमिलरली अगर आप k को -1 पुट करें तो यू विल गेट ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है दैट इज a-1। सो a-1 इज आल्सो -1/2j, क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी के साथ -1/2j मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप k को 2 पुट करें तो यू विल गेट a2 ई रेज टू पावर 2j ओमेगा नॉट टी। अब ई रेज टू पावर 2j ओमेगा नॉट टी की टर्म इसमें मौजूद नहीं है। सो इसका मतलब है वो क्यों मौजूद नहीं है, इस वजह से मौजूद नहीं है कि उसका कोफिशिएंट 0 है। अगर वो नॉन ज़ीरो होता उसका कोफिशिएंट तो वो भी यहाँ पे मौजूद होती। सो इसका मतलब है a2 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली a-2 इज आल्सो इक्वल्स टू 0 बिकॉज ई रेज टू पावर -2j ओमेगा नॉट टी की टर्म भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी तरह से k की कोई भी ऐसी वैल्यू जो ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 1 है या लेस देन -1 है, तो उसके लिए ये सारे कोफिशिएंट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ दो टर्म्स मौजूद हैं, एक ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी और एक ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। सो ना तो यहाँ पे 2j ओमेगा नॉट है, ना ही -2j ओमेगा नॉट है, ना 3j ओमेगा नॉट है, ना -3j ओमेगा नॉट है। इसका मतलब ये है कि ऑल दोज कोफिशिएंट्स a2 a-2 a3 a-3 दे आर इक्वल्स टू 0। So this is another example. This is example 3.4 in your Oppenheim book। और इस example में भी ये भी simple सी example है, चूँकि आपके पास जो signal है that is a combination of some sinusoid and cosinusoid signals। So xt is given as like this 1 plus sin omega naught t plus 2 cosine omega naught t plus cosine 2 omega naught t plus pi/4। तो इसको भी हम उसी तरह की फॉर्म में लिखेंगे यूजिंग आयलर रिलेशनशिप। ये sin omega naught t can be written as e raised to power j omega naught t minus e raised to power minus j omega naught t divided by 2j। सो ये पहली टर्म को आपने इस तरह लिख दिया। 2 cosine omega naught t can be written as e raised to power j omega naught t plus e raised to power minus j omega naught t। अगर ये 2 ना होता यहाँ पे तो इधर नीचे 2 भी होता है, लेकिन ये 2 और ये इसकी वजह से ये 2 की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से cosine 2 omega naught t plus pi/4 can be written like this e raised to power j 2 omega naught t plus pi/4 plus e raised to power minus j 2 omega naught t plus pi/4। अब उसके बाद हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको
इकट्ठा कर लेंगे। मसलन e रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट t यहाँ पे भी है और e रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट t यहाँ पे भी है। इसी तरह से e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t यहाँ पर भी है और e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t यहाँ पर भी है। सो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 बाय 2j e रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट t, e रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट t की दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लिया। सिमिलरली e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t की दोनों टर्म्स को भी एक साथ लिख लिया और e रेज़ टू पावर j2 ओमेगा नॉट t की एक ही टर्म थी। सो दैट इज़ 1/2 e रेज़ टू पावर j पाई बाय 4 और उसी तरह से e रेज़ टू पावर माइनस j2 ओमेगा नॉट t की भी एक ही टर्म थी, हाफ e रेज़ टू पावर माइनस j पाई बाय 4। So now we will compare that with that general equation. So इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ e रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट t या e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t या कोई भी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एंड दैट इज अवर a नॉट। सो इन दिस केस a नॉट इज इक्वल्स टू 1। ये e रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट t का जो भी कोफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल्स टू a1। सो a1 इज बेसिकली 1 प्लस हाफ j। इसी तरह से e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है दैट इज a माइनस 1। सो a माइनस 1 इज 1 माइनस हाफ j। e रेज़ टू पावर j2 ओमेगा नॉट t के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है दैट इज a2। सो दिस इज अवर a2 हाफ e रेज़ टू पावर j पाई बाय 4 एंड e रेज़ टू पावर माइनस j2 ओमेगा नॉट t के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है दैट इज a माइनस 2। सो दिस इज हाफ e रेज़ टू पावर माइनस j पाई बाय 4 और इसके अलावा बाकी कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। 3 e रेज़ टू पावर 3j ओमेगा नॉट t या e रेज़ टू पावर माइनस 3j ओमेगा नॉट t यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी तरह से e रेज़ टू पावर 4j ओमेगा नॉट t और e रेज़ टू पावर माइनस 4j ओमेगा नॉट t की टर्म्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है a3 a4 इसी तरह से a5 और सिमिलरली a माइनस 3 a माइनस 4 a माइनस 5 वो सारे कोफिशिएंट ज़ीरो हैं। सो यू जस्ट हैव दीज मैनी कोफिशिएंट्स इन दिस केस। सो दिस वाज टुडेज lecture in which we discussed how we determine the Fourier series coefficient A case. The problem to find the Fourier series of any periodic signal if it exists. कौन से सिग्नल की फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती वो हम लेक्चर 20 में डिस्कस करेंगे। बट इफ द फोरियर सीरीज ऑफ सिग्नल xt periodic signal xt exists, the task of finding the Fourier series is only to compute its Fourier series coefficients. सिर्फ आपने coefficients ही compute करने होते हैं। So वो A केस जो आपने compute करने होते हैं Fourier series coefficient, उनके लिए कैसे कंप्यूट किए जाते हैं उसके लिए हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया कि आप जो गिवन सिग्नल xt है उसको e रेज़ टू पावर माइनस j के ओमेगा नॉट t से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे ओवर वन कंप्लीट पीरियड। सिमिलरली अगर आपने a नॉट मालूम करना है तो a नॉट विच इज़ कॉल्ड DC कोफिशिएंट दैट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल इन वन कंप्लीट साइकिल, और वो हमने उसमें हम जस्ट xt को इंटीग्रेट करते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग इट विद एनी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल और इस xt को ओवर वन कंप्लीट पीरियड इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद हमने कपल ऑफ एग्जांपल्स जो हैं वो इसमें देखी हैं जिसमें सिंपल केसेस थे हमारे पास जिसमें हम इसको आयलर रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए इन कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे। हर केस ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं होगा और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम एक एग्जांपल करेंगे जहाँ पे हम ये जनरल फॉर्म यूज़ करेंगे कोफिशिएंट मालूम करने के लिए। जो a का फार्मूला लिखा है हमने इंटीग्रल की फॉर्म में वो फार्मूला यूज़ करेंगे कोफिशिएंट्स को डिटरमिन करने के लिए। लेकिन आज के लेक्चर में जो एग्जांपल्स थी वो सिंपल थी, लेकिन इसी की एक कंटिन्यूएशन जो नेक्स्ट लेक्चर 19 है आपका उसमें हमने कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं एंड देन सम अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज भी डिस्कस किए हैं। सो इस लेक्चर को भी उस लेक्चर के साथ जो है वो कंबाइन करके देखें तो आपको ये सारी चीज़ जो है समझ आ जाएगी कि कोफिशिएंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और अल्टरनेट फॉर्म जो फोरियर सीरीज़ की हैं वो क्या हैं और क्यों हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। होपफुली जो है वो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।